Hello students, welcome to the Spandan Academy classes. Today we shall study chapter 4 of environmental study. The name of the chapter is The Story of Amrita, means Amrita की कहानी. Let's read our chapter. This is a true story from long ago, almost 300 years ago, in a place called Khejdi. Lived Amrita. Khejdi village is near Jodhpur in Rajasthan. The village got its name because of the many khejdi trees that grow there. यह बहुत पुरानी बात है, करीब 300 साल पुरानी. और हाँ, यह किस्सा सच्चा है. अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव की रहने वाली थी. जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ी क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे. The people of this village took great care of the plants, trees and animals. Goats, deer, hares and peacocks roamed fearlessly there. The people of the village remembered what their elders used to tell them. They used to say, अगर पेड़ हैं तो हम हैं. Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे. गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे. गांव वालों को बुजुर्गों की कई बातें आज भी याद थीं. उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं. पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं. अमृता's फ्रेंड, अमृता के दोस्त. Amrita would get up early every morning and greet her friends, the trees. She would choose a special tree for the day. She would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree, "Friend, you are strong and beautiful. You care for us. Thank you, tree. I love you very much. Give your strength to me also." अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी. अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था. वह उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती, "दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो. तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो. इसके लिए धन्यवाद. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो." Like Amrita, the other children also had their special trees. They would play for hours in the shade of the trees. अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों की भी पेड़ों से दोस्ती थी. वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे. Is there a place near your house, school or along the road side where trees have been planted? क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं? Yes, there is a park near my house where trees have been planted. हाँ, मेरे घर के पास एक पार्क है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं. Why were they planted there? उन्हें वहाँ क्यों लगाया गया है? They are planted there to provide shade, fruits and purify the air in the surrounding. वे वहाँ छाया, फल प्रदान करने और आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए लगाए गए हैं. Trees in danger. पेड़ खतरे में. Time went by. Amrita was now grown up. One day she went to greet her tree. She saw that there were some strangers in her village. They had axes with them. They said that the king had sent them to cut trees for wood. The wood was needed for building the king's palace. समय बीतता गया. अमृता भी बड़ी हो गई. एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी. तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं. पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे. राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे. लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी. अमृता was shocked. She went to the tree that the men were about to cut. She put her arms around the tree and hugged it tightly. The men shouted and threatened her, but Amrita did not let go to the tree.
The king's men had to follow his order. They had to cut the tree. On seeing this, Amrita's daughter and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. Many people, include Amrita and her daughters, died to save the trees. यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों ने डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी से एक ही बार में अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। When did the king heard of this, he could not believe that people give up their life for trees. He visited to the village himself. There he learned about villagers' respect for trees and animals. जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। Do you remember what the elders of this village used to say? तुम्हें याद है ना उस गांव के बुजुर्गों की बातें? Yes, I remember. The elder of the village used to say, अगर पेड़ हैं तो हम हैं. This refers to that plant and animals can survive without us, but it's impossible for humans to survive without them. हाँ, मुझे याद है गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पौधे और जानवर मनुष्य के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन मनुष्यों के लिए उनके बिना जीवित रहना असंभव है। The villages protected. सुरक्षित गांव। The villagers' strong feeling for trees affected the king greatly. He ordered that from them no trees would be cut and no animals could be harmed in that area. Even today, almost 300 years later, the people of this area called Vishnuyas continue. राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग, जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। Continue to protect plants and animals. Even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear. रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। राइट अबाउट एनी वन ट्री। किसी एक पेड़ के बारे में लिखो। हम लोग मैंगो ट्री के बारे में लिखेंगे। मैंगो ट्री आप सभी को पता है आम के पेड़ को कहते हैं। डस द ट्री फ्लावर। क्या उस पर फूल आते हैं? यस, मैंगो ट्री इज अ फ्लावरिंग प्लांट। जी हाँ, आम का पेड़ एक फूल वाला पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर? फूल क्या साल भर रहते हैं? नो, द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर। कोई भी फूल साल भर पेड़ पर नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल? पत्तियाँ किस महीने में झड़ती हैं? Mango tree is an evergreen tree, but usually during the dry winters, mid of October, November, their leaves fall and the new ones come during the spring season. आम का पेड़ एक सदाबहार पेड़ है, लेकिन आमतौर पर शुष्क सर्दियों के दौरान यानी अक्टूबर के मध्य में उनके पत्ते गिरते हैं और नए बसंत के मौसम में आते हैं। अब हम खेजड़ी पेड़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। यह पेड़ राजस्थानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियां की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं।
थैंक यू।